بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج سے ہم 9th کلاس فزکس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور آج ہم پہلا چیپٹر ڈسکس کریں گے، فزیکل کوانٹیٹیز اینڈ میجرمنٹس۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو ہے وہ اس ٹاپک کو، اس چیپٹر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ بیسک چیزیں جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کرنی ہے۔ چونکہ ہم فزکس پڑھنے جا رہے ہیں تو فزکس بنی کیسے، فزکس تک پہنچنا ہم نے کیسے ہے، تو اس کو پہلے ڈسکس کریں گے۔ سٹارٹ میں سب سے پہلے بچے ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ ڈے 1 سے ایسا نہیں تھا کہ ایک سائنٹسٹ جو ہے وہ رات کو سویا اور اس کے دماغ میں خیال آیا کہ چلو جی میں اٹھتا ہوں اور جو ہے نا وہ میں ایک کتاب لکھ دیتا ہوں جس کا نام میں فزکس رکھوں گا۔ ایسا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اور ایسا بھی نہیں تھا کہ جو ہے وہ پہلے سے پلان کیا ہوا تھا کہ ابھی جو میں لکھ رہا ہوں یہ ایک فزکس کی بک کے لیے میں کانٹینٹ لکھ رہا ہوں۔ جیسے کوئی بھی جو ہے وہ کالمسٹ کالم لکھتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا موضوع ہے، تو میں اس ٹاپک کے لیے یا یہ میری بک ہے جس کے لیے میں یہ ٹاپک جو ہے وہ لکھ رہا ہوں۔ تو ایسا نہیں تھا فزکس کے کیس میں، یا کسی بھی سائنس کی جو بک ہے اس کے کیس میں ایسا نہیں تھا اور نہ ہی ایسا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہے وہ نیچر کی فطرت کی سامنے آتی ہیں اور ان کو جو ہے وہ انسان سرچ کرتے کرتے پھر اس کے حقائق تک پہنچتا ہے اور پھر ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ اس کی تحقیق ہونے کے بعد جو ہے وہ اس کو ایک سائنٹیفک جو ہے وہ نام دے دیا جاتا ہے کہ یہ ایک سائنٹیفک ریسرچ جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے جی سائنس کیا ہے۔ جی سائنس بیسیکلی ایک ورڈ سینشیا سے نکلا ہے۔ اب اس کی 2-3 پروننسیشن جو ہے، کچھ لوگ سینٹیا کہتے ہیں، کچھ لوگ سینشیا کہتے ہیں، تو آپ جو مرضی کہہ لیں، کیونکہ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ آپ جو مرضی کہہ لیں، انگریز نے کون سا ہم سے آ کے پوچھنا ہے۔ خیر یہ تو مذاق تھا، تو سینشیا کہیں یا سینٹیا کہیں، ڈزنٹ میٹر۔ تو ہمارے پاس جو سائنس ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ واٹ از سائنس؟ سائنس از بیسیکلی ایک ورڈ سینشیا سے نکلا ہے جس کا میننگ ہوتا ہے نالج۔ ٹھیک ہے، دا ورڈ سائنس از ڈرائیوڈ فرام اے لیٹن ورڈ سینشیا وچ مینز نالج۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سائنس نالج تو ہے، کس قسم کا نالج ہے؟ تو بیسیکلی بچوں ایک ایسا نالج جس کے 2 سورسز ہوں۔ فرسٹ ون از ایسا نالج جو ایکسپیریمنٹ سے حاصل ہو، نمبر 2 ایسا نالج جو آبزرویشن سے حاصل ہو۔ تو 2 طرح کے جو ہے وہ اس کے سورسز ہیں۔ سائنس از دا نالج وچ از گینڈ تھرو آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹیشن از کالڈ سائنس۔ ٹھیک ہے جی، تو ہمارے پاس جو ہے وہ جو سائنس ہے تو اس کے 2 سورسز ہیں۔ فرسٹ ون از آبزرویشن، یعنی کہ کوئی مشاہدہ کیا، کسی چیز کو آبزرو کیا، تو اس سے جو بھی نالج آپ کو حاصل ہوگا وہ آپ کا جو ہے وہ سائنس کہلائے گا۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ ایکسپیریمنٹیشن کی، آپ نے تجربہ کیا کسی چیز کو، جو ہے وہ آپ نے فزیکلی اس کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن کی، اس کو جو ہے وہ آپ نے پریکٹیکلی اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی کام کیا، اس سے جو بھی انفارمیشنز آپ کے پاس کلیکٹ ہوئیں، جو آپ نے انفارمیشنز حاصل کی، ان انفارمیشنز کو، ان معلومات کو یا اس علم کو جو آپ نے ایکسپیریمنٹ پرفارم کرنے کے بعد حاصل کیا، اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں بچوں؟ سائنس کا نام دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ 2 مین سورسز ہیں سائنس کا علم، یعنی کہ 2 سورسز سے حاصل ہوتا ہے۔ فرسٹ ون از آبزرویشن اینڈ سیکنڈ ون از ایکسپیریمنٹیشن۔ اچھا بچوں، یہ تو ہو گئی سائنس کی بات۔ تو ہسٹری میں اگر ہم چلیں تو آپ دیکھیں گے کہ سائنس بھی جو ہے وہ ڈے 1 سے نہیں تھی، آہستہ آہستہ جو ہے وہ، اصل بات یہ ہے کہ انسان شروع سے ہی جو ہے نا وہ بہت زیادہ تجسس کا شکار رہا ہے، کہ انسان جو ہے یہ سوچا کرتا تھا کہ یہ چاند جو ہے وہ کیا چیز ہے، یہ کس طرح سے روشنی پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، سیارے ستارے کیا چیزیں ہیں یہ، ٹھیک ہے، کہ یہ ہمارا پورا جو ہے وہ نظام کائنات کس طرح سے چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے وہ پچھلے زمانوں میں اگر آپ کو پتہ ہو تو پتھروں کے ساتھ جو ہے وہ رگڑ کر آگ، یعنی کہ چنگاری نکلتی تھی، جس سے پھر جو ہے وہ ہم آگ جلایا کرتے تھے۔ تو اس وقت کے جو لوگ تھے وہ یہ بھی سوچا کرتے تھے کیا اگر میں لکڑی کے ساتھ اگر رگڑوں، اس کو رب کروں، تو کیا وہاں سے بھی کوئی آگ جو ہے وہ جنریٹ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ انسان شروع سے ہی جو ہے وہ کچھ چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ بڑا تجسس کا شکار رہا ہے، بڑا جو ہے وہ اس کے بارے میں کیوریوسٹی جو ہے وہ اس کے اندر پائی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو انسان جو ہے وہ ہر وقت یہ سوچتا رہتا تھا کہ اتنے بڑے بڑے یہ جو پہاڑ موجود ہیں زمین پر، اس کا کیا مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ انسان جو ہے وہ فطرت کے بارے میں، نیچر کے بارے میں، اس کائنات کے بارے میں جو ہے وہ سوچا کرتا تھا۔ تو وہ کچھ ایکسپیریمنٹس سے جو چیزیں ثابت ہو جاتی تھی اس کو ہم جو ہے وہ سائنس کا نام دے دیا کرتے تھے۔ تو اب جیسے جیسے جو ہے وہ وقت گزرتا چلا گیا، سائنس کا نالج جو ہے وہ انکریز ہوتا چلا گیا۔ اور دوسری بات جو ہے وہ بیٹے آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جتنا بھی ہمارے پاس سائنس کا نالج تھا اس کو جو ہے وہ
हमारे पास तकरीबन 19 सेंचुरी तक जो है वो उसको एक सिंगल सब्जेक्ट में जो है वो स्टडी किया जाता था, और उस सिंगल सब्जेक्ट का नाम था नेचुरल फिलोसफी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 19 सेंचुरी तक जो है जितना भी नॉलेज जो है वो हमारे पास ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से हासिल हुआ था, उसको हम एक ही जगह पे रख रहे थे, और आप फर्ज कर लें कि एक ही किताब में हम लिख रहे थे, और उस किताब का नाम था नेचुरल फिलोसफी। ठीक है, तो फिर जैसे जैसे नॉलेज इंक्रीज होता गया, हमने नेचुरल फिलोसफी को दो ग्रुप्स में चेंज कर दिया। ठीक है, यानी कि टाइम के साथ साथ जैसे नॉलेज इंक्रीज हुआ ना, तो हमने जो है वो कोशिश की क्यों ना इसको जो है वो सेपरेट करें, ताकि एक एक चीज को स्टडी करना जो है वो थोड़ा आसान हो सके। ना कि मिसाल के तौर पर आप फर्ज कर लें, आपने बचपन में जो है वो बुक्स पढ़ी होंगी, वो छोटी क्लासेस में 6-7 में ना वो गाइड होती है, हमदर्द वालों की गाइड होती है, तो उसमें 7-8-10 सब्जेक्ट्स के जो है ना वो सारी की सारी किताबें एक ही इतनी मोटी सी जो है वो किताब होती है, उसके अंदर जो है वो लिख दिया जाता है। तो अभी आपने साइंस पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर बाद जो है वो आपने मैथ पढ़नी है, फिर उसके बाद इस्लामियात, इंग्लिश, उर्दू, मुतालात एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो अब आपको जो है वो उसको खंगाल के ढूंढना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, एज कम्पेयर टू कि आपके पास जो है वो आपने इंग्लिश पढ़नी है तो इंग्लिश की अलग एक बुक है, फिजिक्स पढ़नी है तो फिजिक्स की एक अलग बुक है, साइंस पढ़नी है तो साइंस की अलग बुक है। तो जैसे जैसे नॉलेज इंक्रीज होता गया, नेचुरल फिलोसफी को भी हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, ताकि हमारे पास जो स्टडी है वो ज़रा आसान हो जाए, और इन्फॉर्मेशन जो है वो थोड़ी सी डिवाइड हो जाए, ताकि उसको जो है वो उससे अगर कोई चीज़ आप ढूंढना चाह रहे हैं तो वो आसानी से जो है वो मिल सके। तो हमने इस नेचुरल फिलोसफी को दो ग्रुप्स में चेंज किया, एक को हम कहते हैं फिजिकल साइंसेस और दूसरी को हम कहते हैं बायोलॉजिकल साइंसेस। ठीक है, फिजिकल साइंसेस से क्या मुराद है? फिजिकल साइंसेस बेसिकली नेचुरल फिलोसफी की ऐसी ब्रांच थी, या आप ये कह सकते हैं कि साइंस की ऐसी ब्रांच थी जिसके अंदर हम फिजिकल चीज़ों को स्टडी करते थे, यानी कि ऐसी चीज़ें जिसके अंदर कोई जान नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, तो फिजिकल साइंसेस जो है किसके साथ डील करती हैं बच्चे? नॉन लिविंग थिंग्स के साथ जो है वो डील करती हैं। ठीक है, फिजिकल साइंसेस बेसिकली क्या है जी? नेचुरल फिलोसफी की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं, जबकि इसके मुकाबले में हमारे पास जो दूसरी ब्रांच थी, या जो दूसरी कैटेगरी थी, या जो दूसरा ग्रुप था, उसको हमने बायोलॉजिकल साइंसेस का नाम दिया। और बायोलॉजिकल साइंसेस से क्या मुराद है कि साइंसेस, ऐसी साइंसेस जिसके अंदर हम लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं, यानी कि जिसमें हम जानदार चीज़ों को जो है वो स्टडी करते हैं। सॉरी, यहाँ पे अलिफ भी आएगा, जानदार। ठीक है जी, तो जिसमें हम जानदार चीज़ों को जो है वो स्टडी करते हैं, उसको हम जो है वो बायोलॉजिकल साइंसेस का नाम देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर हमने पढ़नी फिजिक्स थी, आप हमें पता नहीं किन चक्रों में ले गए हैं, कहाँ आ गई जो है वो साइंस, फिर नेचुरल फिलोसफी, फिजिकल साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस। तो एक्चुअली बच्चे मैंने आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन जो है वो दी है, थोड़ी सी हिस्ट्री जो है वो आपको बताई है कि आप फिजिक्स तक पहुँचेंगे कैसे या पहुँचे कैसे थे। तो अभी तक जो है वो हम नेचुरल फिलोसफी और उसके दो ग्रुप्स जो है फिजिकल साइंसेस और बायोलॉजिकल साइंसेस। और एक बात बच्चे याद रखिएगा, फिजिक्स के अंदर हम किसी भी लिविंग थिंग को स्टडी नहीं करेंगे, उसके लिए हमने अलग एक बुक जो है वो डिस्कस, मैंने तो नहीं पढ़ानी वो, ठीक है, आपको और लेक्चर जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल होंगे, तो वो बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी जो है वो बेसिकली एक अलग से ब्रांच बना दी गई है, जिसके अंदर हम सिर्फ लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं, एनिमल्स को स्टडी करते हैं, प्लांट्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये टोटल जो है वो जानदारों के गिर्द जो है वो रिवॉल्व करती है, ह्यूमन बींग्स को स्टडी करते हैं, और इसी तरह जो है वो चरिंद परिंद जानवर, कुत्ते बिल्ले, सब चीज़ें जो है वो सॉरी टू से, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम इसी के अंदर स्टडी करते हैं, सारी की सारी जानदार चीज़ें। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं जी हमारे पास इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। अभी हम फिजिक्स की तरफ जो है वो आते हैं कि एक्चुअली जो है वो फिजिक्स क्या है। मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे पास जो नेचुरल फिलोसफी थी उसको दो ग्रुप्स में चेंज किया गया, एक हमारे पास बायोलॉजिकल साइंसेस और एक हमारे पास फिजिकल साइंसेस। लेकिन मैंने जैसे आपको अभी बताया कि बायोलॉजिकल साइंसेस के साथ हमने डील नहीं करना, तो लिहाजा इसको तो मैं यहीं पे स्टॉप करवा रहा हूँ। हम लेके चलेंगे किसको? फिजिकल साइंसेस को। और फिजिकल साइंसेस को भी टाइम गुजरने के साथ साथ हमने मजीद 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया। फिजिकल साइंसेस को भी हमने 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया, और वो 5 ग्रुप्स जो है वो कौन कौन से हैं कि फिजिकल साइंसेस जो है वो डिवाइड की गई थी किस किस के अंदर? नंबर 1 इज फिजिक्स, नंबर 2 इज केमिस्ट्री, नंबर 3 इज एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी। अब फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, एस्ट्रोनॉमी क्या है, जियोलॉजी क्या है, मेट्रोलॉजी क्या है, ये सारी बातें तो हमने डिस्कस नहीं करनी, लेकिन मैं एक एक लफ्ज़ में या एक एक लाइन में जो है आपको बता देता हूँ कि फिजिक्स के अंदर हम बेसिक, इसको तो हमने डिटेल में स्टडी करना है। ये तो हमारा टॉपिक है कि फिजिक्स के गिर्द तो हमने हमारे इंशाल्लाह अगले कोई जितने भी 9 चैप्टर्स जो है वो हमारे फिजिक्स के 9th के, और 9 चैप्टर्स जो है वो हमारे फिजिक्स के
10th के, वो सारा का सारा हमने फिजिक्स को ही डिस्कस करना है। लेकिन ये थोड़ी सी बातें जो है मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में भी बता देता हूँ कि फिजिक्स के अंदर हम बेसिकली क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं, मैटर और एनर्जी को डिस्कस करते हैं, बस 2 बातें, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना बता रहा हूँ, आगे हम डिटेल में इंशाल्लाह इसको स्टडी करेंगे। उसके बाद जब हम इसको फिजिकल साइंसेज को जो हमने डिवाइड किया तो उसका जो दूसरा ग्रुप था उसका नाम था केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के अंदर हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं, हम कंपोजिशन डिस्कस करते हैं, स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, किस चीज़ का जी, मैटर का, यानी कि हम इसके अंदर मैटर को स्टडी करते हैं, मैटर के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, मैटर की कंपोजिशन को डिस्कस करते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को, बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, एटम क्या होता है, आयन क्या होता है, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक्चुअली केमिस्ट्री के अंदर जो है वो डिस्कस की जाती हैं। उसके बाद है जी एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में जो है वो हम 2 चीज़ें बेसिक जो है वो मेनली डिस्कस करते हैं, जो है जी हमारा स्पेस, जिसको हम ये कहते हैं कि खला, ठीक है, हमारी ज़मीन के गिर्द जो सारा स्पेस मौजूद है वो उसको डिस्कस करते हैं, स्टार्स को, गैलेक्सीज को, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो एस्ट्रोनॉमी में जो है वो स्टडी की जाती है। उसके बाद है जी जियोलॉजी। जियोलॉजी का वर्ड जो है वो जियो से निकला है, और इस जियो का मतलब जियो न्यूज़ नहीं है, जियो मीन अर्थ, ठीक है। तो जियो मीन अर्थ, सो जियोलॉजी मीन स्टडी ऑफ अर्थ, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम जियोलॉजी मीन स्टडी ऑफ अर्थ। उसके बाद है हमारे पास मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी के अंदर जो है वो हम बेसिकली वेदर को स्टडी करते हैं। किस चीज़ को स्टडी करते हैं, वेदर को, यानी कि मौसमियात वगैरह, जो हमारे मौसम में तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, ठीक है, उसको हम स्टडी करते हैं किसके अंदर, मेट्रोलॉजी में, ठीक है। तो ये मेन 5 ग्रुप्स थे जिसके फिजिकल साइंसेस को जिसमें हमने डिवाइड किया था, यानी कि इन 5 ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया था। फिर वही बात कि ये 4 जो है इनको हमने डिस्कस नहीं करना, हमारा काम किससे है जी, फिजिक्स से है। तो अब हम फिजिक्स को जो है वो स्टडी करते हैं। अब हम पहुंचेंगे जी फिजिक्स क्या चीज़ है, और फिर आगे जो है वो फिजिक्स की ब्रांचेस को डिस्कस करते हैं। अब जी बात करते हैं फिजिक्स की। ये सारी हिस्ट्री थी, बेसिक मैंने आपको चीज़ें बताई कि एक्चुअली हम फिजिक्स तक का सफ़र तय करके कैसे पहुंचे, कैसे जो है वो हम फिजिक्स मतलब कि फ़िज़िक्स की बुक जो है वो वजूद में आई। तो मैंने जैसे अभी आपको पहले चंद मिनट पहले बताया कि ये फ़िज़िक्स ऐसे ही जो है वो किसी साइंटिस्ट ने जो है वो रात को ख्वाब में देख के सुबह तहरीर नहीं कर दी थी, बल्कि ये पूरी जद्दोजहद थी, पूरा जो है वो कई सालों का जो है ये सफ़र था। शायद आप ये सदियां कह सकें तो भी बेहतर है, ठीक है, कि कई सदियां जो है वो लगी ये सारी फिजिक्स को बनाने में, जिसको पढ़ते हुए बच्चों को कॉमाज में मौत पड़ती है। खैर, व्हाट इज़ फिजिक्स, जो कि बहुत आसान है। मैं इंशाल्लाह आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप ये मेरे लेक्चर्स तसल्ली से, तवज्जो से सुनेंगे, इंशाल्लाह जिसको फिजिक्स जो है वो मुश्किल लगती है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो आपको आसान लगेगी। शर्त यह है कि आप तवज्जो से सुने और उसकी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको लाजमी तौर पर जो है वो उसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा और उसको तैयार करने की भी कोशिश कीजिएगा। और इंशाल्लाह आपको मेरे इस चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उसमें भी जो फर्दर जो है वो इंशाल्लाह मैं अपलोड करता रहूँगा। उसमें मैं आपको याद करने के तरीके, अभी एक जो है वो वीडियो अवेलेबल है, साइंटिफिक मेथड टू लर्न एनीथिंग, जिसको हम कहते हैं SQRRR, ठीक है। तो आप उसको भी देख सकते हैं कि किस तरह से आप किसी चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से याद कर सकते हैं। तो बात करते हैं जी हम फिज़िक्स की। फ़िज़िक्स क्या है जी? फ़िज़िक्स एक्चुअली स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन, ठीक है जी। कि फ़िज़िक्स के अंदर हम बेसिक डेफिनेशन के मुताबिक 3 चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं। मैटर क्या है, एनर्जी क्या है, और मैटर और एनर्जी की आपस में इंटरेक्शन, यानी कि इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, इसका ताल्लुक क्या है। तो ये 3 चीज़ें जो है वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप ये कहेंगे फिजिक्स क्या, व्हाट इज फिजिक्स? इसका आंसर ये है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस इज कॉल्ड फिजिक्स, ठीक है जी। अब उसके बाद जो है वो फिजिक्स की 9 ब्रांचेस जो है वो यहाँ पे दी गई हैं। मैं 1 बाय 1 जो है वो इनको डिस्कस कर लेता हूँ। ये बिल्कुल ब्रीफ जो है वो होगा, बिल्कुल शॉर्ट जो है वो मुख्तसर टाइम में जो है मैं इनको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि एक्चुअली ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमने 9th और 10th की जो बुक है उसके अंदर ये एक्चुअली हमारे चैप्टर्स ही हैं, ठीक है। ये हमारे पास मैकेनिक्स जो है वो आपका चैप्टर नंबर 2 और 3 जो है वो इसी मैकेनिक्स से रिलेटेड है। हीट भी जो है वो आपका चैप्टर नंबर 7, 8 जो है वो हीट 8 और 9 जो है, सॉरी 8 और 9 जो है वो आपका चैप्टर इसी 9th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 और 9 ये इसी हीट से रिलेटेड है। साउंड जो है ये आगे मैं आपको भी ये फर्दर साथ साथ जो है वो बताता रहता हूँ, ठीक है जी। अब सबसे पहला जो हमारी जो ब्रांच है फिजिक्स की वो है जी मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के अंदर टोटली हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी है वो 3 चीज़ें डिस्कस करनी है। फर्स्ट वन इज व्हाट इज मोशन, नंबर 2 इज
कॉज ऑफ मोशन एंड नंबर 3 इज इफेक्ट ऑफ मोशन। ठीक है, कि मैकेनिक्स के अंदर जो है वो हम 3 चीजें डिस्कस करते हैं कि क्या कोई बॉडी मूव कर रही है, अगर मूव कर रही है तो क्यों मूव कर रही है, और इससे इफेक्ट क्या क्रिएट हो रहा है। तो ये 3 चीजें हम जो है वो डिस्कस करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो हीट के अंदर हम जो है वो हीट बेसिकली फिजिक्स की ही एक ब्रांच है, जिसके अंदर हम ये चीजें डिस्कस करेंगे कि हीट की नेचर क्या है। नेचर ये है कि ये जलाती है। ठीक है, उसके बाद जो है वो मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कैसे किया जा सकता है, उसके मोड्स यानी कि उसके मेथड्स कितने हैं, किन मेथड से जो है वो आप ट्रांसफर कर सकते हैं। 3 मेथड्स जो है वो हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशंस। ठीक है जी, उसके बाद जो है वो हीट का इफेक्ट क्या होगा। तो ये 3 चीजें जो है वो हम बेसिक इसके अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद है हमारे पास साउंड ये जो है आपकी 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 जो है वो साउंड से रिलेटेड है, जिसके हमने ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे कि साउंड है क्या, प्रोड्यूस कब होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, पिच क्या होती है, क्वालिटी क्या होती है, लाउडनेस क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होती है, और इस तरह से जो है वो और बहुत सारी चीजें जो है वो हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो है वो 10th क्लास की फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो साउंड वेव्स क्या होती हैं, इनकी प्रोडक्शन कैसे होती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी डेली लाइफ में एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है जी, ये सारी बातें हम जो है वो साउंड में पढ़ेंगे। उसके बाद है जी लाइट, जिसको हम ऑप्टिक्स भी कहते हैं, ये आपका 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 है। इसके अंदर हम ये देखेंगे प्रॉपर्टीज, वर्किंग एंड यूजेस ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। OI जो मैंने लिखा हुआ है, इट्स मीन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो होते हैं बेसिकली ऐसी डिवाइसेस जो किसी चीज को देखने के लिए इस्तेमाल हो। आपने अक्सर देखा होगा जी, राना ऑप्टिकल, चौधरी ऑप्टिकल, फलां ऑप्टिकल, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर, ये ठीक है, जहाँ पे ये एनके वगैरह बनती हैं। ठीक है, सन ग्लासेज या दूसरी जो है वो आई ग्लासेज जो होती हैं वो बनती हैं, उसको ऑप्टिक्स कहते हैं। ठीक है जी, उसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जो है वो फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम चार्जेस को स्टडी करते हैं, उसके इफेक्ट्स को, और तीसरी चीज जो है वो ये है कि चार्ज और मैग्नेट का आपस में रिलेशनशिप क्या है, इस चीज को भी हम स्टडी करते हैं। ठीक है, और ये भी हम जो है वो आपके चैप्टर नंबर 14, 15 जो है वो इसी चीज को 13, 14, 15 जो है वो इन 3 चैप्टर्स के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसका 10th क्लास का चैप्टर नंबर 14, 15 एंड नहीं 13, 14 एंड 15, यानी कि आपका जो चैप्टर नंबर बनता है ये चौथा, 5वां और 6ठा। ठीक है जी, उसके बाद है हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एटॉमिक मीन एटम से निकला है, तो इसके अंदर हम स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम को जो है वो डिस्कस करेंगे। और हमारी 10th क्लास की जो फिजिक्स का उसका लास्ट टॉपिक जो है वो एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स से ही रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद आता है जी प्लाज्मा फिजिक्स। आपको पता होना चाहिए कि मैटर की टोटल जो है वो 4 स्टेट्स हैं। हम 3 पढ़ते हैं आमतौर पर, लेकिन चौथी स्टेट भी है, हम पढ़ते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज, और एक और स्टेट है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा इज द 4th स्टेट ऑफ मैटर, जिसको हम आयनिक स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। तो प्लाज्मा फिजिक्स क्या है जी, आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, इसकी स्टडी जिसको हम 4th स्टेट ऑफ मैटर का भी नाम देते हैं। यानी कि फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम मैटर की 4th स्टेट को डिस्कस करते हैं, यानी कि आयनिक स्टेट को या प्लाज्मा को जो है वो डिस्कस करते हैं। उसके बाद है हमारे पास जियो फिजिक्स। जियो का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि ये अर्थ है, तो जियो फिजिक्स मीन फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को डिस्कस करें, उस ब्रांच को हम क्या नाम देते हैं बच्चों, जियो फिजिक्स का नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट है जी न्यूक्लियर फिजिक्स। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि एटॉमिक फिजिक्स मीन एटम की स्टडी, अब न्यूक्लियर फिजिक्स मीन स्पेसिफिकली न्यूक्लियस की स्टडी, न्यूक्लियर बिहेवियर ऑफ द न्यूक्लियर, उसकी स्टडी। उसके बाद जो है वो प्रॉपर्टीज, पार्टिकल्स, ठीक है, विद इन द न्यूक्लियर कौन कौन से पार्टिकल जो है वो न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, जैसे कि प्रोटॉन जो है वो मौजूद होते हैं, न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिनो, ठीक है, सॉरी। तो ये सारे वर्ड्स जो है आपने सुने होंगे। तो ये बेसिकली वो पार्टिकल्स हैं जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, जो कि न्यूक्लियस के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो 9 ब्रांचेस थी किसकी, फिजिक्स की। अब मैं 2-3 चीजें जो है वो बड़ी जल्दी से जो है वो, लेक्चर काफी लेंथी हो चुका है, तो मैं 2-3 चीजें बड़ी जल्दी से जो है वो बता देना चाहता हूं कि इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स क्या है। फिजिक्स कोई भी जिंदगी का ऐसा शोबा नहीं है जहां पे आपको फिजिक्स नजर ना आए। मैं सादा सी कुछ चीजें बता देता हूं। रेफ्रिजरेटर, फ्रिजेस जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, फिजिक्स के होने मिन्नत है। उसके बाद पुलिस, किसी भी हैवी लोड को उठाने के लिए जो हम वो गोल दायरा सा जो है वो होता है, ठीक है, गोल से जो है वो होती है, उसको हम वो भी बेसिकली फिजिक्स के अंदर स्टडी की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी, ये भी फिजिक्स की ही वजह से है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट का सिस्टम, जहाज हो गया, गाड़ियां हो गई, बसें, साइकिल, जितनी भी चीजें हैं जो ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रक, ये सारा कुछ जो है वो किसके होने मिन्नत है जी,
फ़िज़िक्स के ही मरहून मिन्नत है। उसके बाद कम्युनिकेशन, किसी ज़माने में जो है वो हम ख़त लिखा करते थे, अब जो है वो हमारे पास, फिर उसके बाद हम कॉल्स पे आए, फिर टेक्स्ट मैसेजेस पर आए, फिर अब जो है वो हमारे पास एंड्रॉयड आ गया, ऑडियो वीडियो कॉल एट अ टाइम जो है वो आप सारा कुछ कर सकते हैं। तो ये सब का सब जो है वो भी फ़िज़िक्स ने ही आपको जो है वो प्रोवाइड किया है। उसके बाद आता है जी मोबाइल फ़ोन, और ये भी टोटली जो है वो इसी का है। ये तो हो गया इसकी इंपॉर्टेंस और इसकी अहमियत, और दो इसके नुकसानात भी जो हैं वो हमने डिस्कस करने हैं। नंबर 1 इज़ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का बायस बन रही है। कैसे? फिज़िक्स कैसे बन रही है जी? फिज़िक्स तो धुआं नहीं छोड़ती, फिज़िक्स तो जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ नहीं करती, लेकिन जो फिज़िक्स ने मशीनरीज बना के दी हैं, ये जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, ये मशीनरी फिज़िक्स ने बना के दी है ना, तो इसी मशीनरी से जो है वो बेसिकली एनवायरमेंटल पोल्यूशन का बायस जो है वो बन रही है। तो ये मशीनरी, उसके बाद जो है वो डेडली वेपन्स, देखो जितने भी हथियार हैं, एटॉमिक जो है वो एटम बम है, ठीक है, उसके बाद जो है वो आपके पास वेपन्स हैं, जितने भी पिस्टल्स और ये वो, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें फिज़िक्स ने बना के दी हैं, लेकिन ये नुकसानदेह भी हैं। तो ये कुछ फ़वाइद और ये दो नुकसानात भी जो है वो आपके सामने रख दिए गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है वो हम इसका नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आपने तवज्जो से ये लेक्चर सुना है तो आपको एक एक लफ्ज़ समझ आया होगा, और अगर अभी भी कोई लफ्ज़ आपको रह गया जो नहीं समझ आया, यानी कि कोई बात ऐसी जो आपको ना समझ आई हो, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए अवेलेबल है, कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको आंसर मिलेगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।